أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گی انشاءاللہ. تو آج ہم شروع کرتے ہیں نیو لیسن اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. تو آج ہمارا نیو لیسن ہوگا نون قطنی کے اوپر. اللہ کی توفیق سے آج ہم پھر سے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب اچھے سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں، اور آپ سبھی سیکھ رہی ہیں بہنیں، اللہ آپ کا قبول کرے اور ہم آپ سب بھی سیکھیں اچھے سے اور آگے بھی سکھائیں انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں نون قطنی. نون قطنی یعنی کہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا نون کو کہتے ہیں. چھوٹا نون ہوتا ہے، آپ نے مصحف میں دیکھا ہوگا ہمارا اس طریقے سے نون بنا ہوتا ہے تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں. اور یہ جو ہے انڈیا اور پاکستان کے مصحف میں ہمیں شو کرتا ہے، لیکن اگر ہم دوسرا مصحف دیکھیں عثمانی، اس میں نہیں ہوتا، تو ہم نے وہاں پہ خود کو دینا پڑتا ہے نون قطنی. لیکن پہلے ہم انڈیا مصحف میں کس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے، تو پہلے ہم وہ چیز دیکھیں گے، اس کے بعد ہم دوسرا سیکھیں گے رولز انشاءاللہ. تو نون قطنی کا قاعدہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو، تنوین، تنوین کے بعد سکون کا آنا. تنوین کے بعد اگر ساکین حرف آ جائے تو اس کو ملا کر پڑھتے ہیں. اس کو ملا کر پڑھتے وقت تنوین کے اندر چھپے ہوئے نون کو زیر دے کر پڑھتے ہیں. اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں. پھر سے بولتی ہوں، تنوین کے بعد اگر ساکین والا سکون والا حرف آتا ہے تو اس کو جب ملا کر پڑھتے ہیں اس وقت جو تنوین کے اندر ایک نون چھپا ہوتا ہے، نون زیر، اس نون کو ہم زیر دے کر پڑھتے ہیں، زیر کی آواز دیتے ہیں، اس میں کسرہ دیتے ہیں، تب ہم اس نون قطنی کو پڑھتے ہیں. جیسے اگزامپل ہمارے پاس نون بنا ہوا ہوتا ہے انڈیا مصحف میں بھی، تو یہ ہے جیسے لمزتی، لمزتین الذی. ہمارا قاعدہ کیا ہے؟ تنوین کے بعد سکون کا حرف ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں نوح نبنہ، نوح نبنہ. یہاں پہ تنوین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تنوین تو نہیں ہے، یہاں پہ تو ہمارا کیا لگا ہے؟ حرکت لگا ہے، تو یہ بنا دیا گیا ہے. تو انڈیا مصحف میں ہمارا کیا ہوتا ہے؟ تنوین شو کرتا ہے. جو عثمانی مصحف ہوتا ہے، جو عربی والا ہوتا ہے، اس میں ہمارا نون زیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں سنگل حرکت ہوتی ہے، اس میں ہمارا تنوین شو کرتا ہے. سپوز وہاں پہ ہوگا لمزتن الذی، اس طریقے سے. لیکن انڈیا والے مصحف میں ہمیں نون زیر بنا بنایا ملتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس ہمیں اپلائی کرنا ہوتا ہے کیسے پڑھنا ہے. تو دیکھیں نون کے نیچے زیر لگا ہے تو ہم اسے پڑھیں گے لمزتن الذی. سبھی کو معلوم ہوگا جمیعا الذی، نوح نبنہ، نوح نبنہ، نبنہ. تو نون کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم اس کو نبنہ پڑھ رہے ہیں. ہم اس کے نیچے نون پر ہم زبر نہیں لگائیں گے، ایسے کہ لمزتن الذی، نوح نبنہ، ایسے نہیں پڑھیں گے. جمیعا الذی، قیران الوصیۃ، ایسے نہیں پڑھنا. نون کے نیچے اس میں نون قطنی میں کیا لگتا ہے؟ عموماً موسٹلی یہی لگتا ہے، زیر، زیر ہی لگے گا. اس کو ہم نون کو زیر دے کر پڑھتے ہیں. نلذی، نبنہ،
निल वसीयतु, निल्लजी, ठीक है। इसको हम नल्लजी, नुल्लजी, नबनहु, नुबनहु ये नहीं पढ़ते। यानी कि हम नून को जेर से पढ़ेंगे, कसरा से पढ़ेंगे, इसको पेश और जबर नहीं देंगे। तो अब ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। हमें कुरान पाक में हमें इस तरीके से मिलता है, जैसे हम सूरह मुल्क पढ़ते हैं, उसमें भी आता है तबारकल्लज़ी, आता है ना, नल्लज़ी, ठीक है। तो वही सेम चीज हम पढ़ते हैं वहां पे नल्लज़ी, उससे पहले आयत का निशान भी होता है हमारा। अब इसमें भी वक्त का हमारा क्या होता है, अगर हम रुक रहे होते हैं, मैं इसको बताऊंगी अभी आगे। इसमें क्या होता है, चले बता देती हूँ कि जैसे कोई आयत चल रही है, नल्लज़ी, अब ये नल्लज़ी इन दोनों के बीच में आयत का निशान है यहाँ पर। जैसे ये लुमज़ती नल्लज़ी है, तो यहाँ पे अगर आपका आयत यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, बीच में यहाँ आयत आ गई है, उस सूरत में हम इसे कैसे पढ़ेंगे। उसमें भी हम देखिए ये नून हमारा यहाँ पे आ जाता है, तो हम इसे अगर हम एक ही उसमें पढ़ रहे हैं वसलन मिलाते हुए, लुमज़तिनल्लज़ी, लुमज़तिनिल्लज़ी, तो फिर हम लुमज़तिनिल्लज़ी ही पढ़ते जाएंगे अगर हम यहाँ पे नहीं रुके। लेकिन अगर हम यहाँ पे वक्फ करते हैं, आयत पे रुकते हैं, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, लुमज़ह, यहाँ पे हमने रोका, इसके हम वक्त के कायदे आगे देखेंगे। हम लुमज़ती को लुमज़ह क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल अगर आप यहाँ वक्फ करेंगी, लुमज़ह, यहाँ पे आप रुकी, फिर उस सूरत में आप इसे निल्लज़ी नहीं पढ़ेंगी, आगे से आप यहाँ पे फिर अल्लज़ी पढ़ेंगी, हमज़तुल वसल, यानी कि आप अलिफ को पढ़ेंगी, यहाँ पे अलिफ होगा, ठीक है, अल्लज़ी पढ़ेंगी सिंपल। और अगर आप यहाँ पर नहीं रुकती हो आयत पे, तो सीधा हमारी आयत चल रही है, उस सूरत में आप इसको पढ़ेंगी, लुमज़तीनल्लज़ी। ठीक है, तो उस सूरत में हम यहाँ पे अगर हम वक्फ करेंगे तब हम नून जेर को नहीं पढ़ेंगे, अगर हम आयत पे वक्फ करेंगे तो हम नून जेर नहीं पढ़ेंगे, फिर हम नून जेर को छोड़ देंगे, फिर जो सिंपल पढ़ेंगे अल्लज़ी। जैसे यहाँ पे अगर मैं रुकू, नूह, यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया, नूह, लेकिन अगला मैं इसको इब्नहु पढ़ूंगी, ठीक है, मैं इसे निब्नहु नहीं पढ़ूंगी, फिर नून जेर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसे मिलाते हुए पढ़ रही हूँ, नूहु निब्नहु, फिर मैं जब इसको मिलाते हुए पढ़ूंगी, यहाँ पे रुकूंगी नहीं नूह पे, तो फिर मैं इसमें नून जेर को पढ़ूंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पे लुमज़ती, यहाँ पे अब हमारा जैसा कायदा बता रहा है कि तनवीन जो है, हमारा तनवीन के बाद क्या आ रहा है, ये हमारा कायदा है, तनवीन के बाद सुकून आना। तनवीन हमारा होता है, सभी को मालूम है, दो जबर दो जेर दो पेश। लेकिन अब जैसे कि एग्जाम्पल में देख रहे हैं, वहां पे तो हमारा दो जेर नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्यों हरकत नजर आ रहा है, देखिए क्यों आ रहा है यहाँ पे। तो ये चीज अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बना हुआ दिख रहा है इंडियन मुसफ में। अब अगर हम बात करें उस्मानी मुसफ, ठीक है, उसमें हमारा किस तरीके से होता है, ऐसे होता है, ये देखिए, ये आ गया आपका तनवीन, नेक्स्ट रूप हमारा सुकून वाला। हमारा कायदा यही है ना, तनवीन के बाद सुकून का आना। तनवीन के बाद हम इसका जो कायदा है, तनवीन के बाद हमजतुल वसल, ये उस्मानी मुसफ को अगर हम देखें वहां तो हमें बना बनाया मिल गया है। अब हम इसमें इसकी बात करें, तो तनवीन के बाद हमजतुल वसल का आना, और उसके बाद हमारा सुकून वाला हुरूफ आता है, ठीक है। फिर से बोलती हूँ, नून या तनवीन, तनवीन कोई भी दो जबर दो जेर दो पेश, उसके बाद अगर हमजतुल वसल आता है, फिर हमजतुल वसल के बाद कोई भी हुरूफ साकीन वाला आ जाए, कोई भी हुरूफ साकीन वाला अगर आ जाता है, तो फिर हम उस सूरत में क्या करते हैं, उस सूरत में हम अब देखें नून को जेर कहाँ पे बनाएंगे। ये जो हमारे दो पेश है ना, नूहुन, फिर इसमें एक पेश गिर जाएगा, ठीक है, नूहू बन जाएगा। जो वो एक पेश गिर गई है उसकी जगह हमारा नून जेर ले लेती है, फिर ये बन जाता है नूहू निब्नहू,
नूहु निब्नहु। और हमजतुल वसल जैसा कि हमने सीख लिया है लास्ट क्लास में, हमजतुल वसल हमारा टेम्परेली होता है, ये कभी भी गिर जाता है। और हमने देखा था जब हम कोई मिलाते हुए पढ़ते हैं तो हमारा हमजतुल वसल नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा नूने कुतनी कायदा हमें बनाना है तो हम पहले अपना कायदा याद करेंगे ना। तनवीन के बाद अगर हमजतुल वसल आए और उसके बाद कोई भी हुरूफ साकीन का आए, उस सूरत में हम नून जेर कैसे बनाएंगे। तो चाहे यहाँ पे दो जबर हो या यहाँ पे दो जेर हो या यहाँ पे दो पेश हो, उसमें हम एक हटा देंगे, यानी कि वो गिर जाती है। अब यहाँ पे दो पेश है तो यहाँ पे एक जेर गिर गई तो क्या बना, नूहू। नूहू एक जेर, एक पेश जो है हमारा यहाँ पे रह जाता है, एक पेश हमारा रह जाएगा और जो दूसरा पेश है वो हमारा नून जेर बन जाता है। नून कितनी ऐसे बनाते हैं हम उस्मानी मुसहफ में। और हमें जब पढ़ते हैं तो हम कायदे को गौर में रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि हाँ उस्मानी मुसहफ में तो नहीं होता नून जेर बना हुआ, तो ये खुद को आपने रूल अप्लाई करना होगा। फिर कैसा बनता है ये, नूहू निब्नहू। आप देखिए फिर ये हमारा यहाँ पे एक पेश हमारा हट गया है और दूसरा हमारा जो पेश था वो हट गया, यानी गिर गया है और उसकी जगह नून जेर ने ले ली। अब जब नून जेर आ गया है तो ये जो हमजतुल वसल है ये पढ़ा जाएगा ही नहीं, क्योंकि टेम्परेली हम वसलन कर रहे हैं। वसलन करते वक्त वसलन यानी कि मिलाना, कनेक्ट करना। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा हमजतुल वसल नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, हम इसको पढ़ेंगे नूहू निब्नुहु, नूहू निब्नहु, नूहू निब्नहु, इस तरीके से। फिर दूसरा एग्जांपल देखें, जज़ाअल हुस्ना, इसको कैसे, यहाँ पे कैसे बनाएंगे। अब पहले हम कायदा देखेंगे। तनवीन है, दो जबर लगा है, पहले में हमने क्या देखा, दो पेश का देखा। तो तनवीन के बाद क्या आ रहा है हमारा, हमजतुल वसल आ रहा है। उसके बाद हमारा लाम सुकून है, तो हमने देखा था तनवीन के बाद हमजतुल वसल आए और उसके बाद कोई भी हुरूफ हमारा क्या हो, सुकून हो। फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं, पहले ये तीन फिर से मैं बोलती हूँ। सबसे नंबर 1 क्या है हमारा, हम देखेंगे तनवीन है, दो जेर, दो पेश। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमजतुल वसल, जो हमने देखा हमजतुल वसल का साइन ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोई भी हुरूफ हमारा, कोई भी हुरूफ सुकून की हालत में हो। तो ये चीज हमने देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा। अब हम क्या करते हैं, जो हुरूफ पर तनवीन लगा है कोई भी, तो फिर हम उसको एक बना देते हैं। दो जबर है तो एक जबर बन जाएगा, दो पेश है तो एक पेश बन जाएगा, दो जेर है तो एक जेर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हमजा के ऊपर दो जबर है यानी कि तनवीन है, फत्तातैन। तो हमने यहाँ पे एक जबर एक फत्ता ये हमने यहाँ पे गिरा दिया। अब ये गिर गया तो हमारा क्या बन गया, नून जेर नी, नून जेर नी। हमने नून जेर बना दिया, छोटा नून बना दिया इसकी जगह। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जज़ाअन, जज़ाअनिल हुस्ना। अब हम इसको पढ़ेंगे जज़ाअनिल हुस्ना, जज़ाअनिल हुस्ना। यहाँ पे जो तनवीन था वो गिर कर एक गिरा और हमारा ये बन गया नून जेर। फिर हम इसको पढ़ेंगे जज़ाअनिल हुस्ना, नून को लाम में हम सीधा मिला ही देंगे सुकून के साथ। और हमजतुल वसल टेम्परेली होता है, जो हमारा वसलन में पढ़ा नहीं जाता। क्लियर। और इसी तरीके से ये देखें, बेगुलामी, यहाँ पे बना बनाए देखिए, बेगुलामी निस्मुहु। असल में कैसा था ये, असल में हमारा बेगुलामिन था ये। यहाँ पे क्या था, मिन था, दो जेर थे और नून जेर नहीं था। बेगुलामिन अस्महु। अब देखिए बेगुलामिन अस्महु कैसे, अच्छा नहीं लग रहा, कैसे क्या पढ़े हम इसमें। तो यहाँ पे हमने एक जेर को गिरा दिया, बेगुलामी बन गया। और फिर वो जो जेर हमारा गिरा वो हमारा नून जेर ने ले लिया, तो यहाँ पे नून जेर आ गया आपका, ये देखें। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे बेगुलामिन, बेगुलामिन निस्मुहु, बेगुलामिन निस्मुहु, बेगुलामिन निस्मुहु। इस तरीके से हम नूने कुतनी को बनाते हैं उस्मानी
इंडिया पाकिस्तान के मुसहफ को छोड़ते हुए जिसमें हमारा नून ज़ेर नहीं होता, नून कुतनी नहीं होता, इस तरीके से हम इसको बना देते हैं फिर, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, ये है हमारा इंडिया मुसहफ। इंडिया मुसहफ में ऐसे होता है, हमारे पास ऐसे ही है। तो यहाँ पे बना बनाया है, इसे कैसे पढ़ेंगे? अब देखिए इस तरीके से आता है ना, ख़ैरुनित्मअन्ना। अब यहाँ पे ख़ैरुनित्मअन्ना के बीच में कोई हमारा आयत नहीं है, तो हम इसे सिंपल पढ़ेंगे ख़ैरुनित्मअन्ना। नित नून ज़ेर लग रहा है तो वैसे ही अप्लाई करेंगे। नित नित्मअन्ना, नित्मअन्ना। इसी तरीके से यहाँ पे फित्नतुन इनक़लबा, फित्नतुन इनक़लबा। ठीक है? तो अब आप यहाँ पे समझ गई होंगी कैसे ये नून ज़ेर बन गया है यहाँ पे, क्योंकि आपने वो सीख लिया कि यहाँ पे 2 ज़ेर था, 2 पेश था यहाँ पे ख़ैरु, और यहाँ पे 1 पेश गिर गया और उसके बदले यहाँ पे नून ज़ेर ने बना लिया। नून ज़ेर बन गया यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था असल में? ख़ैरुन, ख़ैरुन इत्मान्ना, अत्मान्ना। तो आपने यहाँ पे नून ज़ेर बनाया, पेश को गिरा कर एक, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पर भी वही था, 2 पेश थे, फितनतुन था, लेकिन आपने एक पेश गिराया और नून ज़ेर बना दी दूसरी। तो ये हो गया फितनतु निन क़लबा। तो इस तरीके से ये हमारा इंडिया मुसहफ में बना हुआ होता है, तो आप इसको नून ज़ेर के साथ पढ़ेंगी। लेकिन अगर आपका यहाँ पे क्या होगा, बीच में आयत आ जाती है, सपोज़ जैसे कि आती है सूरह मुल्क में, यासीन में भी आती है। सूरह मुल्क तो सभी सिस्टर पढ़ती ही होंगी रात में, तो वो तो आपको सभी को मालूम होगा। तो हमारा आयत आ जाती है बीच में, तो वहाँ पे क्या होता है, अल्लज़ी होता है और हम उसको पढ़ते हैं अल्लज़ी। लेकिन आयत पे अगर हम रुक जाएँगे, तो वहाँ पे हम निल्लज़ी नहीं पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ रुक गए, तो हम इसको अल्लज़ी पढ़ेंगे, निल्लज़ी नहीं पढ़ेंगे। निल्लज़ी कब पढ़ा जाएगा? अगर आपकी आयत कंटिन्यू चल रही है, आप यहाँ नहीं रुके, तो आप इसको निल्लज़ी, फिर आप सेम उसको निल्लज़ी पढ़ेंगे अगर आपने स्टॉप नहीं करा आयत पर। और अगर आपने आयत पे स्टॉप करा, फिर आप उसको अल्लज़ी पढ़ेंगे, निल्लज़ी नहीं पढ़ेंगे, फिर नून ज़ेर को नहीं पढ़ना, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, वनादा नूहु इब्नहु, वना, ये देखिए, ये है इंडिया मुसहफ जो कि हमारे पास है, और ये है हमारा उस्मानी मुसहफ। देखिए किस तरीके से फ़र्क है, कैसे बना है ये। तो यहाँ पे देखिए आप, ऊपर बना है नूहु निब्नहु, नून ज़ेर हमारा लग गया है क्या, और इससे पहले क्या था? इस तरीके से था ये, 2 पेश थे, नूहुन, हमज़तुल वसल, और हमने फिर यहाँ पे एक पेश को गिरा दिया, एक पेश गिर गया हमारा, तब जाके हमारा एक पेश यहाँ पे रह गया है और नून ज़ेर बना यहाँ पे बन गया, ठीक है? नून ज़ेर हमने यहाँ पे दे दिया। तो पहले क्या था? नीचे वाला, और फिर हमने इसको जब कायदा अप्लाई किया, तो हमारा ये वाला बन गया। तो उम्मीद करूँगी आपको ये समझ आ गया होगा। और एक चीज़ और हमने अभी इस एग्ज़ाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर अब आप यहाँ देखें, ये है हमारा लुमज़ती नल्लज़ी। कायदा अब आप सोचें, हमारा तनवीन के बाद हमज़तुल वसल का आना और साकीन वाले हुरूफ का आना। अगर इंडिया मुसहफ में देखें तो हमारा क्या होगा, तनवीन के बाद सुकून वाला हुरूफ आना, तनवीन के बाद सुकून वाला हुरूफ आना। अब यहाँ पे तनवीन के बाद ये तो आपको समझ आ गया कि हमारा यहाँ पे एक ज़ेर क्यों रहा, हमने यहाँ पे नून ज़ेर बना दिया। लेकिन हमें ये समझ नहीं आया, आप सोच रही होंगी यहाँ पे तो लाम के ऊपर तशदीद है, तो यहाँ पे सुकून क्यों नहीं? हमारा कायदा बता रहा है तनवीन के बाद सुकून का आना, फिर नून ज़ेर पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे सुकून तो नहीं है, यहाँ पे तो लाम तशदीद है। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने पढ़ा था तशदीद हमारा 2 हुर्फ से मिलकर बनता है, एक होता है हरकत वाला, एक होता है सुकून वाला। तो यहाँ पे लाम तशदीद कैसे बन रहा है? लाम सुकून प्लस लाम फतहा, ये तो हो गया हमारा ये लाम सुकून। तो ये 2 से मिलकर बना है, तो हमारा ये यहाँ पे लाम सुकून होगा ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे नून कुतनी लगा रहे हैं। तो कभी अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए कि आप तशदीद वाला हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। आप तनवीन के बाद अगर कोई भी अगर आपको नजर आ जाए तनवीन के बाद तशदीद वाला हुरूफ, तो आप वहां पे नून ज़ेर ही लगाएंगी, क्योंकि तशदीद हमारा सुकून से मिलकर बनता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना।
क्लियर। उसके बाद हम थोड़ा सा अना वाले को भी देख लेते हैं। अना, अना हम जल्दी से पढ़ते हैं। जैसे अना पर वक्फ करें तो अलिफ पढ़ा जाएगा, और थोड़ा सा अगर मद करते हुए पढ़ेंगे तो अना के बाद वाले लफ्ज से मिलाकर पढ़ेंगे तो अलिफ को जल्दी पढ़ेंगे। यानी कि अगर हम इसको जल्दी पढ़े, बहुत से हुर्फ आते हैं अना बशरुन इस तरीके से, तो यहाँ पे हम इसे खींचते नहीं है, मद नहीं देंगे अना बशरुन। यहाँ पे कुछ हमारे हुर्फ ऐसे हैं, इसको हम अना को जल्दी पढ़ते हैं। अना बशरुन, अना नजीरुन, अना अदुव्वुन। अना पर वक्फ करे तो अलिफ पढ़ा जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे आप अना पे रुक रही हैं, यहाँ पे आप वक्फ कर रही हैं, उस सूरत में आप इसको खींचेंगी अना। लेकिन यहाँ पे अगर आप मिलाकर पढ़ रही हैं तो फिर आप अना को जल्दी पढ़ेंगी। बस इसका यही थोड़ा सा कायदा है, तो मैंने सोचा आपको ये भी बताती चलूं। तो आज हमारा यही है। तो आप समझ गई होंगी छोटा नून, नूने कुतनी किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। छोटा नून नूने कुतनी होता है नून जेर, ये होता है। तो हमने देख लिया इंडिया मुसहफ में क्या होगा, तनवीन के बाद साकिन वाला हुर्फ होगा, और फिर हम उसको नून जेर के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम उस्मानी मुसहफ की बात करें, अदर मुसहफ की बात करें जिसमें हमारा नून जेर नहीं होता है, उस सूरत में हमारा कायदा क्या होता है, तनवीन के बाद हमजतुल वसल होता है, तनवीन के बाद हमजतुल वसल होता है, और उसके बाद हमारा क्या होता है, सुकून वाला कोई भी हुर्फ होता है। फिर उसमें हम क्या करते हैं, एक जबर या एक जेर जो भी आएगा उसको गिरा देते हैं, और उसके बदले हम नून जेर लगा देते हैं। इस तरीके से हम उस्मानी मुसहफ में बनाते हैं नूने कुतनी को। क्लियर। उम्मीद है सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखें, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। तो आज हम इतना ही रखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।